Okay, so you guys are here again. So in this challenge we have decided to spend 1 lakh rupees and see how much profitable sale we can get this time. What are the problems that people usually face while scaling and spending a huge budget? I am pretty excited and let the challenge begin. So guys, today is day 1 of the challenge that we have taken of spending 1 lakh rupees and let's see कि हम ऐसी क्या क्या चीजें करेंगे जो कि required होती हैं और कितनी profitability हम actually में करते हैं. So let's go. I got love up in my pocket and I don't know what to do with it. This is my office setup behind me. तो जैसा कि आज day 1 है तो हम अपने ad campaigns चलाएंगे because हमने testing already हम कर चुके हैं products की, जिनमें से हमें पता है कौन से winning products हैं, क्या क्या interest रहेंगे Facebook के लिए, कैसे ad चलाने हैं. But the real game is कि जब हम testing के लिए जो accounts use करते हैं उन पे जब हम test करते हैं छोटा budget लगा के, तो Facebook क्या करता है, जो छोटे advertisers भी हैं उनको भी equal opportunity देता है. But जब आप स्केल करने लगते हो, अपना एड बजट आप ज्यादा कर लगाते हो, तो जो आपका जो सीपीपी होता है वो इवेंचुअली इतना ज्यादा बढ़ने लगता है, तो आपका ब्रेक इवन होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करने में. तो सारा गेम स्केलिंग का यही है कि आपको अपना सीपीपी मेंटेन करना है और वो कैसे करना है वो हम बताएंगे. Now as you can see for the testing I have spent around like 2,500 on each account on day 1 to see the actual results, like whether it is matching with my team's result or not. As you can see these are of 7 September and today 7 September. These are the day 1 results. So I have spent around 2,201. I think by the end of the day like it will reduce all the budget. So guys, this is my second account for testing. As you can see I have spent around like 1,800 till now and the results are coming positive. So this is also of 7 September, but I'm not actually or fully satisfied with the results that have come till now. I'm looking for more better results because I'm going to spend 1 lakh rupees obviously. So tomorrow we can have some more better results or negative results, whatever results we will get, and we will go on with the best creatives and best campaigns that we can further go on, and we can switch that to the no limit accounts. So yeah. तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7. लेट्स सी क्या रिजल्ट्स रहे हैं हमारे स्टोर के लिए. आज डे 2 में हम काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं, जो कि कल के रिजल्ट्स हमने जो टेस्ट किए थे दे आर ऑलरेडी हियर. आज हम क्या करेंगे कि आज जो हमने 1 लाख का जो बजट डिसाइड किया था उसमें से अभी तक हमने 5,000 आई थिंक स्पेंड किए हैं. वी स्टिल हैव 95,000 रुपीज लेफ्ट विद अस. तो अब जो मैं बजट लगाऊंगी वो रहेगा 15,000 to 20,000 पर डे एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. Day 3. So guys, today is day 3, but it didn't go the way we planned it. So when I woke up to see my website results, I saw that my Facebook ad account is suspended and I ended up losing a lot of money in it. मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई and I didn't knew what to do next. तो मैंने अपने टीममेट्स को कॉल किया. Bruh. हाय ब्रो, क्या हाल चाल? यार एक दिक्कत हो गई, मैंने इसीलिए फ़ोन किया है. एक्चुअली मेरा फेसबुक एड अकाउंट ना रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो और मैंने कल रात में उसमें एड्स लगाए थे, बढ़िया चल रहे थे, सब कुछ एक्टिव हो गया था, बट उसमें मेरे 2,000 रुपये पड़े थे और रिस्ट्रिक्ट हो गया, बंद हो गया. मिलेंगे वापस? अब नहीं मिलेंगे, कोई पैसे वापस नहीं करता फेसबुक. ओह शिट. इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि Facebook doesn't give any shit about your money, whether it's 1 rupees or 1 lakh. So if you want your money back, you have to see them on court. और इतना टाइम कौन ही वेस्ट करेगा? तो अगर आपके पैसे फंसे हैं Facebook में, भूल जाओ और मूव ऑन करो. Day 4.
जैसा कि कल रात में हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं अपने कैंपेन में, काफी बजट बढ़ाया हमने क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन हमारे हो चुके थे ऑलरेडी। ऑल दो अकाउंट सस्पेंड हुआ बट स्टिल हमारे पास और भी अकाउंट्स थे जिनमें हमने ऑप्टिमाइजेशन कर रखा था। कल रात का हमने बजट लगाया होगा 40 to 45,000 हमने लगाया है। उसका रिस्पॉन्स इतना स्टार्ट हो गया है, काफी अच्छी सेल्स आना स्टार्ट हो गई है और काफी ऑप्टिमाइज हो चुका था हमारा कैंपेन। तो हमने सोच लिया कि अब बजट हम बढ़ाएंगे। तो अभी मैं ऑर्डर्स नहीं दिखा सकती बट जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स और सेल्स होंगे वो हम इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज पूरे दिन हमारा काम है कि हम प्रॉपर अपने एड्स को बैठ के मॉनिटर करेंगे और उसके साथ ही साथ बस कंसिस्टेंटली बजट लगाते जाएंगे ताकि कैंपेन्स ऑप्टिमाइज ना। और एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके एड अकाउंट में पैसे खत्म होने पे आ गए हैं तो उनको पहले ही लोड कर लो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। Later that night. The next day. तो अब कर लेते हैं कुछ काम की बातें। तो इस पूरे चैलेंज में आज हमारा 6th डे है और हमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। और रही बात इस चैलेंज में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था हमारे लिए, तो इस चैलेंज में जब हमारा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हुआ तो काफी सारा ऑप्टिमाइजेशन हमारा ऑलरेडी खराब हो गया था उसकी वजह से, और जो पैसे गए तो वो गए अलग। बट मेरी टीम काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, उन्होंने ऑलरेडी बैकअप में काफी चीजें कर रखी थी। अगर आप प्रीपेड पेमेंट करते हो अपने एड अकाउंट्स में बिलिंग के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 1 लाख बजट लगा रहे हो या 20,000 रुपए लगा रहे हो, 10,000 रुपए लगा रहे हो तो छोटे बजट्स में डिवाइड कर दो। अगर आप मान लो एक दिन में 10,000 रुपए बजट लगा रहे हो तो रात में जब आप 12 बजे एड्स को पब्लिश करवाते हो या फिर जो चल रहे हैं कैंपेन्स ऑप्टिमाइज तो उनमें बस खाली पैसे लोड करो, जैसे 4-5 हज़ार रुपए। उसके बाद फिर जब मॉर्निंग हो तो उस इंटरवल पे जैसे अगर 1,000 रुपए बचे या 500 रुपए बच रहे हैं तब पैसे लोड कर लो। तो इस चीज का चेक रखोगे बट मेक श्योर करना कि अकाउंट एरर नहीं आना चाहिए वरना ऑप्टिमाइजेशन चला जाएगा बिल्कुल। तो जितने भी बड़े ड्रॉपशिपर्स हैं वो पोस्ट पेड पेमेंट यूज करना पसंद करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आप जिस फीस में कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। और इट्स टाइम टू शो यू सम रियल रिजल्ट्स जो हमने 1 लाख रुपीज स्पेंड करके जितने ऑर्डर्स आए हमारे पास। तो या आई एम प्रीटी एक्साइटेड। आर यू गाइस? आई एम टेकिंग यू टू माय डैशबोर्ड। पैसा ही पैसा होगा। So as you can see, the total number of revenue that we have generated is around 7,67,264 rupees, and the total number of orders that we have done is around 1,115 orders. Guys, as you have already seen the results, but सीन ये है कि हमारी टीम ने सोचा है कि हम इसको और स्केल करेंगे। ये स्केलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा बट अभी जो आपने देखा है टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू जो शॉपिफाई पे दिखा रहा है कुछ 7,27,000 का, वो एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे पास पे आउट के फॉर्म में आएगा कि जैसे हमने 1 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं, कितना हमारे पास एक्चुअल पेमेंट्स में आएगा रोपोसो की तरफ से, वो हमें उसकी एक पेमेंट साइकिल होती है 20 से 25 दिन की, जब तक सारे ऑर्डर्स डिलीवर होंगे। डिलीवरी का भी 7 दिन होता है। तो वो सारी चीजें होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया है 1 लाख स्पेंड करके। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में दिखाएंगे। और आपको जब आप टेस्टिंग करते हो तो आपको डिलीवरी परसेंटेज, RTO परसेंटेज, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो उस प्रोडक्ट की, कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं मार्केट में, उनसे आपको देखना होता है। बट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरी और मेरी टीम की कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि एक ब्रेक इवन CPP होता है जो आपको मेंटेन रखना रहता है प्रॉपर स्केलिंग के प्रोसेस में। जैसे अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर है, आपके पास जितना उस प्रोडक्ट का जब आपने टेस्टिंग करी होगी उसका RTO परसेंटेज कितना है, डिलीवरी परसेंटेज कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है उसमें, उसके हिसाब से हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें एक डिसाइड कर लेते हैं कि इतना नंबर ऑफ अगर CPP आ रहा है तभी हम चलाएंगे एड्स, वरना बंद कर देंगे। या फिर जब तक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं, वरना फिर नहीं चलाते। अगर बहुत ज़्यादा CPP आ रहा है तो मतलब दैट प्रोडक्ट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, स्केल करने लायक नहीं है। जैसे इस प्रोडक्ट का ब्रेक इवन CPP था हमारे लिए
120 रुपीज़। और भी हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स थे, हमने उन पे स्केल किया इसको। और ये वीडियो जितने भी नए ड्रॉप शिपर्स हैं जिन्होंने छोटे स्केल पे किया है और वो प्लान कर रहे हैं ज़्यादा स्पेंड करने के लिए, तो बहुत संभल के करो। और मैं तो कहूँगी कि धीमे धीमे करना स्टार्ट करो, करते करते सीखो। So guys, as you can see, this is my Roposo Cloud Analytics dashboard, and the product that we are doing for scaling, that was anti-graying hair serum. Yeah, this is the delivery percentage of that particular product. The delivery percentage was 31% and the RTO percentage was around 63%, and the GMV was around 18,54,446. And as you can see, synced orders, that was 2,639. And in this challenge we have actually done around 12 to 1500 orders. So that is how we have completed our challenge by spending 1 lakh rupees. So you can see the delivery percentages, everything is written over here. Total number of orders for particularly anti-graying serum, we have done around 2,639 orders for this particular product, as this was a winning product. So guys, one thing that is most important in this whole process of scaling is that कि इसका डिलीवरी परसेंटेज आप देख रहे हो कि 31% था, पर लेकिन आपको किसी परसेंटेज के बैरियर में आपको नहीं रुकना है। कई बार ऐसा हुआ है कि 10% डिलीवरी रेट के साथ भी हमने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है, बट दैट टू डिपेंड ऑन वेरियस वेरिएबल्स। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी परसेंटेज कम है, 10% है, तो ये 10% है, 20% है, तब भी हम उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको थोड़ा महंगा बेचो, 1000 अराउंड, और उसका 1000 1500, उसके 1500 आसपास, जितना भी तुम उसको बढ़ा के बेच पा रहे हो, अगर उसको ROS अच्छा आ रहा है तो भले उसका डिलीवरी परसेंट कम है, बट फिर भी यू कैन मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और एक और चीज़ है, ये जो डिलीवरी परसेंटेज का जो बैरियर आप लोग ने अपने माइंड में रख रखा है कि नहीं, हम 50% वाले डिलीवरी रेट वाले प्रोडक्ट्स के नीचे हम नहीं करेंगे, 50 होगा या 40 होगा या 60 होगा तभी हम करेंगे। आपको इस बैरियर के आगे बढ़ना है और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। अगर आप इन सारी चीज़ों के बीच में फंसे रहोगे तो ऐसे आप बिजनेस कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर बनना है तो टेस्टिंग करते रहना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में लॉसेज होते हैं, बट वी स्टिल रिकवर इट। आपको अपनी जो ये जर्नी है रोकना नहीं है, आपको करते रहना है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आप आ जाएगी। लॉसेज होते हैं स्टार्टिंग में, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है।